नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। योगी विद्यापीठ प्रेरितः शारदा मंदिर अनिताबेन देवांगभाई इफ्कोवाला डे स्कूल नडियाद नगरतः संस्कृत शिक्षिका धरती महोदया वदामि। अहम भवतः हार्दिक स्वागतं करोमि। कक्षा 11 पद्य 4 दशक धर्म लक्षणम એટલે કે ધર્મના 10 લક્ષણો। જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ પ્રકરણ 1, 2, 3 જોયા। એમાં તમે લોકોએ સરસ રીતે કાર્ય કર્યું જ હશે, મેં જે લખવા આપ્યું છે તે પ્રમાણે। હવે આપણે ચોથું પ્રકરણ જોઈશું। તેમાં વાત કરવામાં આવી છે કે ધર્મના 10 લક્ષણો છે। શરૂઆતમાં એની પ્રસ્તાવના જોઈશું કે સંસ્કૃતનું ધાર્મિક સાહિત્ય શ્રુતિ અને સ્મૃતિ એમ 2 રીતે વિભાજિત થયેલું છે। આમાંથી જે શ્રુતિ છે તેનો એક આશય અપરિવર્તનશીલ ધર્મ સાહિત્ય છે। આવા સાહિત્યમાં ઉપદેશેલી વિગતો ઉપર કોઈ કાળનો કે કોઈ દેશનો પ્રભાવ પડતો નથી। આ રીતે જોતા શ્રુતિશાસ્ત્રના વિધાનો સર્વકાલિક અને સર્વભૌમિક હોય છે, જ્યારે સ્મૃતિશાસ્ત્રમાં ઉપદેશેલી વિગતો ઉપર ક્યારેક દેશ, કાળ કે પરિસ્થિતિનો પ્રભાવ જોવામાં આવે છે। આ કારણે સ્મૃતિશાસ્ત્રના વિધાનો ક્યારેક એકબીજા કરતાં જુદા પણ હોઈ શકે છે। આમ છતાં સ્મૃતિશાસ્ત્રના મોટાભાગના વચનો કાયમ રીતે દરેક દેશમાં અને દરેક કાળમાં ઉપયોગી થાય તેવા હોય છે। આ પાઠના શીર્ષક તરીકે આપવામાં આવેલો શ્લોક પણ આવો જ છે। આ શ્લોકમાં ધર્મના 10 લક્ષણોનો ઉપદેશ છે। આ લક્ષણો એવા છે કે તેમના ઉપર કોઈ કાળ વિશેષ કે દેશ વિશેષની અસર પડી શકે એમ નથી। આ રીતે આ ધર્મના 10 લક્ષણો છેવટે તો માનવ ધર્મના લક્ષણો બની રહે છે। ધૃતિ વગેરે ધર્મના જે લક્ષણો અહીં ગણવામાં આવ્યા છે તેમની સમજ કેળવાય, તેમનું મહત્ત્વ ધ્યાનમાં આવે, તેમનું સ્વરૂપ દર્શન થઈ શકે તેવા અનેક હેતુથી બીજા 10 પદ્યો સાથે અહીં મૂકવામાં આવ્યા છે। આ પદ્યો સંસ્કૃત સાહિત્યના જુદા જુદા ગ્રંથોમાંથી લેવામાં આવ્યા છે। એમની એ વિશેષતા છે કે સંસ્કૃત સાહિત્યના અનેક ગ્રંથોમાં પણ તે પ્રસંગોપાત રીતે ઉદ્ધત થતા રહ્યા છે। પ્રસ્તુત શ્લોકના બધા જ પદ્યો અનુષ્ટુપ છંદમાં રચાયેલા છે। હવે આપણે પ્રથમ શ્લોક જોઈશું। धर्म बहुत ही विशाल है, रिलीजन उसका सिनोनिम या पर्यायवाची नहीं हो सकता। धर्म का कोई अंग्रेजी अनुवाद ही नहीं है। नो वर्ड टू डिफाइन धर्म इन इंग्लिश। धर्म को पाली में धम्म कहते हैं। रिमेंबर अशोकास धम्म। धर्म अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। चलिए परत दर परत धर्म को समझते हैं। धृति क्षमा दमस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशक धर्म लक्षणम। પહેલા શ્લોકમાં ધર્મના 10 લક્ષણો બતાવવામાં આવ્યા છે। એનો અન્વય કરીશું। ધૃતિ, ક્ષમા, દમઃ, અસ્તેયમ, શૌચમ, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, ધી, વિદ્યા, સત્યમ, અક્રોધ, દશક ધર્મ લક્ષણમ અસ્તિ। ધૃતિ એટલે ધીરજ, એનો સમાનાર્થી શબ્દ થાય છે ધૈર્યમ। દમઃ એટલે દમન કરવું। અસ્તેયમ એટલે ચોરી ન કરવી। શૌચમ એટલે પવિત્રતા, શુદ્ધિ। ઇન્દ્રિય નિગ્રહ એટલે ઇન્દ્રિયો પર કાબૂ રાખવો। ધી એટલે બુદ્ધિ, એના સમાનાર્થી થાય છે બુદ્ધિ, પ્રજ્ઞા, મેધા। અક્રોધ એટલે કે ક્રોધ ન કરવો। અનુવાદ જોઈએ કે ધીરજ, ક્ષમા, દમન, ચોરી ન કરવી, શુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો પરનો કાબુ, બુદ્ધિ, વિદ્યા, સત્ય અને ક્રોધનો અભાવ, આ 10 ધર્મના 10 લક્ષણો છે। ફરી એકવાર, ધીરજ, ક્ષમા, દમન, ચોરી ન કરવી, શુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો પરનો કાબુ, બુદ્ધિ, વિદ્યા, સત્ય અને ક્રોધનો અભાવ, આ ધર્મના 10 લક્ષણો છે। હવે સૌથી પહેલું લક્ષણ ધૃતિ, એના વિશે જોઈશું। घृति धैर्य यानी पेशेंस। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। धैर्यवान मनुष्य का कोई काम नहीं बिगड़ता। अगर कुछ बिगड़ भी जाए तो वह धैर्य रखता है और उसे फिर से शुरू करता है।
जैसे जब हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं तब हम बहुत शांत स्वभाव से उसे एक एक लकीर खींचना बताते हैं, पहले ही अक्षर नहीं सिखाते। अगर हम धैर्य छोड़कर सोचे कि वो एक ही दिन में लिखना सीख जाएगा तो क्या यह संभव है? नहीं ना। कहीं जल्दबाजी करने से वह पिछड़ ना जाए। धृति नाम सुखे दुखे यया नाप्नोति विक्रियां ताम भजेत सदा प्राज्ञो य इच्छेत गतित्मात्मન। એનો અન્વય જોઈશું. ધૃતિ નામ યયા સુખ દુઃખે વિક્રિયામ ન આપનોતિ યહ પ્રાજ્ઞઃ સદા આત્મનઃ ગતિમ ઇચ્છેત સદા તામ ભજેત. શબ્દાર્થ જોઈએ. યયા એટલે જેના દ્વારા, વિક્રિયામ એટલે વિકૃતિ, નાપનોતિ એટલે પ્રાપ્ત કરે છે, આત્મનઃ ગતિમ એટલે પોતાની પ્રગતિને, ઈચ્છેત એટલે ઈચ્છે છે, ભજેત એટલે ભજવું. અનુવાદ જોઈએ. ધીરજ એટલે કે જે સુખ દુઃખમાં વિકૃતિને પ્રાપ્ત કરતો નથી, જે બુદ્ધિશાળી પુરુષ પોતાની પ્રગતિને ઈચ્છે છે તેણે હંમેશા ધીરજનું સેવન કરવું જોઈએ. ફરી એકવાર, ધીરજ એટલે સુખ દુઃખમાં વિકૃતિને પ્રાપ્ત કરતો નથી. જે બુદ્ધિશાળી પુરુષ પોતાની પ્રગતિને ઈચ્છે છે તેણે હંમેશા તેનું સેવન કરવું જોઈએ. હવે બીજું, ક્ષમા. क्षमा दूसरे के द्वारा किए गए अपराध को माफ करना। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। क्षमा से मन प्रबल होता है। क्षमा का मतलब समझते हैं ना आप, फॉरगिवनेस। परंतु क्षमा करने से पहले अपराध की गंभीरता ध्यान में रखनी चाहिए। अब धर्म के इस लक्षण को आप कैसे समझते हैं, यह आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति मीनिंग नेचर, तभी तो धर्म ही जीवन है। क्षमा करने के लिए स्वभाव नम्र होना चाहिए। अगर स्वभाव नम्र होगा तो ही तो आप अपराध की गंभीरता समझ सकेंगे और उचित निर्णय ले पाएंगे। जैसे सीता माता ने अपने नम्र स्वभाव के कारण उस धोबी को भी क्षमा कर दिया था। क्षमा खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन अतृणे पतितो वह्नि स्वयमेव पसाम्यति. હવે જોઈએ એના શબ્દાર્થ. ક્ષમા ખડગ એટલે ક્ષમારૂપી તલવાર. કર એટલે હાથ, એનો સમાનાર્થી જોઈએ તો હસ્તઃ પાણીઃ. અતૃણે એટલે ઘાસ વગરની જગ્યા. વહની એટલે અગ્નિ, એના સમાનાર્થી શબ્દ અગ્નિ, અનલહ, પાવકઃ. સ્વયમેવ એટલે પોતાની મેળે જ. ઉપસામ્યતિ એટલે શાંત થઈ જાય છે, ઠરી જાય છે. અનુવાદ જોઈએ. ક્ષમારૂપી તલવાર જેના હાથમાં છે તેનું દુર્જન શું કરી શકે? ઘાસ વિનાની જગ્યામાં પડેલો અગ્નિ પોતાની મેળે જ ઓલવાઈ જાય છે. હવે ત્રીજો, દમ. दम यानी अपने मन का दमन करना है। दमन को अंग्रेजी में सप्रेशन कहते हैं। दमन का मतलब मन का निग्रह यानी कंट्रोल करना है, ना कि वासनाओं का दमन, जो कि ज्यादातर लोग समझते हैं। वासनाओं के दमन के लिए महर्षि मनु ने इंद्रिय निग्रह को अलग स्थान दिया है। मन बहुत ही चंचल व हठीला होता है, उस पर प्रतिबंध लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। मन ही मनुष्य को माया से मोहित कर विषय के प्रबल बंधनों में बांध देता है, परंतु जो मन पर विजय प्राप्त करता है वही जगत पर विजय प्राप्त करता है। आज के संदर्भ में हम इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं। अगर हम मॉल में घूमने जाएं तो वहाँ पर रखी चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं। हमारा मन करता है कि हम सब खरीद लें, मगर हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान खरीदते हैं। न रुष्यति महत् अर्थे व्यसने च न शोचति सवे परिमित प्रज्ञ સદાંતો દ્વિજોચ્યતે. એટલે એના અન્વય જોઈશું. મહતી અર્થે ન રુષ્યતિ વ્યસને ચ ન શોચતિ સ વે પરિમિત પ્રજ્ઞ સદાંત દ્વિજ ઉચ્યતે. શબ્દાર્થ જોઈએ. મહતી અર્થે એટલે મોટા કાર્યને માટે, ન રુષ્યતિ હર્ષ પામતો નથી, પરિમિત પ્રજ્ઞ એટલે કે પ્રજ્ઞાવાન બુદ્ધિશાળી, દાંતઃ દમનશીલ સંયમી, દ્વિજ
એટલે કે બ્રાહ્મણ, બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ. અને ઉચ્યતે એટલે કહેવાય છે કે બોલે છે, કહેવાય છે. અનુવાદ જોઈએ. જે મોટા કાર્યને માટે હર્ષ પામતો નથી અને આફતમાં શોક કરતો નથી, તે ખરેખર પ્રજ્ઞાવાન છે. તે દમનશીલ દ્વિજ કહેવાય છે. હવે આપણે ચોથો શ્લોક अस्तेयम. चौथा लक्षण जो महर्षि मनु ने बताया है वह है अस्तेय यानी चोरी करना, यानी थेफ्ट. कहते हैं चोरी करना पाप है, मनुष्य को चोरी नहीं करनी चाहिए. चोरी करना मनुष्य की निर्बलता को दर्शाता है. अगर मनुष्य सबल होगा तो वह जीवन में कुछ पाने के लिए चोरी जैसा निरर्थक काम नहीं करेगा. वह मेहनत कर कर ही अपने लक्ष्य हासिल करेगा. आज के युग में लोग टैक्स चोरी कर कर सरकार को भी नहीं छोड़ते हैं. वह तो हर एक पल अपना फायदा करने के लिए दूसरों को ठगते ही रहते हैं. मगर इस तरह की सफलता कुछ समय तक ही कायम रहती है और भगवान मनुष्य को वक्त आने पर यह समझा ही देता है कि चोरी करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है. इसलिए अस्तेय का असली मतलब है चोरी न करना. अन्य दिये तृणे रत्ने कांचने मौक्तिके अपि वा मनसा विनिवृत्तियां तदस्तेयं विदुर्बुधाः. એટલે કે છે અસ્તેયમમાં અન્વયમાં અન્ય દિને તૃણે રત્ને કાંચને મૌક્તિકે अपि वा मनसा या विनिवृत्तिः तत बुधाः अस्तेयं विदुः. શબ્દાર્થ જોઈએ. અન્ય દિને કાંચન એટલે અન્ય વ્યક્તિના સોનામાં. કાંચનના સમાનાર્થી થાય હિરણ્યમ, સવર્ણમ, કુંદનમ. મૌક્તિક એટલે મોતીમાં. વિનિવૃત્તિ એટલે નિવૃત્ત થવું. અસ્તેયમ એટલે કે ચોરી ન કરવી. બુધાહ એટલે બુદ્ધિશાળી લોકો. વિદુહુ એટલે કે સમજે છે, જાણે છે. અનુવાદ જોઈશું. અન્ય વ્યક્તિના ઘાસમાં, રત્નમાં, સોનામાં અથવા મોતીમાં મનથી પણ જે નિવૃત્તિ પામે છે કે વિમુખ રહે છે તેને સમજદાર માણસો અચૌર્ય કહે છે. હવે શૌચમ. धर्म का पांचवा लक्षण है शौच. शौच यानी क्लीनलीनेस, प्यूरिफिकेशन. शौच अर्थात साफ सफाई रखना. सिर्फ बाह्य ही नहीं परंतु आंतरिक सफाई रखना जरूरी है. इस लक्षण को हमने अपने दैनिक जीवन में बहुत अच्छे से अपनाया है. हम सुबह उठते हैं, शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करते हैं. हम घर की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं. साफ स्वच्छ होकर ही हम रसोई में खाना बनाते हैं. परंतु जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि यह देश भी हमारा घर है. अतः उसको स्वच्छ व सुंदर रखना हमारा परम कर्तव्य है. हम हर जगह कूड़ा फैलाते हैं और अनेक बीमारियों को आमंत्रित करते हैं. जब पर्यटक घूमने आते हैं वे जहाँ इसकी सुंदरता से मोहित होते हैं वहीं हर तरफ फैला कूड़ा देखकर असंतुष्ट भी होते हैं. हम जो इस धर्म के जन्म स्थान पर रहते हैं हम ही अपना मूल कर्तव्य भूल जाते हैं. क्या स्वच्छता सिर्फ विचारों की शारीरिक होनी चाहिए, विचारों की नहीं? अगर हमारे विचार सुंदर शुद्ध होंगे तो हम राम राज्य का निर्माण अवश्य कर पाएंगे. जब विचार अशुद्ध हुए तो छोटा बड़ा, अपना पराया, ऊंच नीच, अमीर गरीब का फर्क महसूस हुआ. अगर विचारों में शुद्धता होती तो अनेकता में भी एकता का समावस्य होता. आप क्या समझते हैं इस विषय पर? सोचिएगा जरूर. शौचं च द्विविधं प्रोक्तं बाह्यम् आभ्यन्तरं तथा मृजलाभ्यां श्रुतं बाह्यं ભાવશુદ્ધિ અનંતરમ. એટલે એનો અન્વય જોઈશું. શૌચમ ચ દ્વિવિધમ પ્રોક્તમ બાહ્યમ તથા આભ્યંતરમ મૃજલાભ્યામ બાહ્યમ સ્મૃતમ ભાવશુદ્ધિ તથા અનંતરમ પ્રોક્તમ. ના શબ્દાર્થ છે. શૌચમ એટલે પવિત્રતા, દ્વિવિધમ બે પ્રકારનું, પ્રોક્તમ એટલે કહેવાયું છે, બાહ્યમ એટલે બહારનું, અભ્યંતરમ એટલે આંતરિક, મૃજલાભ્યામ એટલે માટી અને જળ વડે, સ્મૃતમ એટલે ઉપદેશ થાય છે, ભાવશુદ્ધિ એટલે ભાવનાની શુદ્ધિ અને અનંતરમ એટલે અંદરનો. અનુવાદ જોઈએ કે શુદ્ધિ બે પ્રકારની કહેવાય છે, બાહ્ય અને અંદરની. માટી અને જળ વડે બાહ્ય
તથા ભાવનાની શુદ્ધિ તે અંદરની કહેવાય છે. હવે આપણે જોઈશું इंद्रिय निग्रह. छठा लक्षण जो महर्षि मनु ने बताया है वह है इंद्रिय निग्रह यानी कंट्रोल ऑफ सेंसेस. आपको याद ही होगा जब हम धर्म का तीसरा लक्षण दम समझ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि इसे अक्सर इंद्रिय निग्रह समझा जाता है, परंतु यह इंद्रिय निग्रह नहीं है. मन को वश में करना अलग है, परंतु इंद्रियों को वश में करना अलग. एक बच्चे का ही उदाहरण ले लीजिए. बच्चा पढ़ने बैठता है. पढ़ने के लिए उसे अपना ध्यान किताब पर केंद्रित करना होगा, परंतु टीवी की आवाज़ से वह पढ़ाई पर ध्यान न देकर टीवी देखने आ जाता है. अतः उसके इंद्रिय उसके वश में नहीं. हमारे पास 6 इंद्रियां 6 सेंसेस बताई गई हैं. अगर हम उन पर काबू पा ले तो हम अपना ध्यान केंद्रित कर अपना हर कार्य सिद्ध कर सकते हैं. मन को वश में करना जितना कठिन है उतना ही कठिन इंद्रियों को वश में करना है. इंद्रियां जहाँ हमें संसार को महसूस कराती है वहीं मन हमें सांसारिक विषयों में बांध देता है. श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा भुक्त्वा ध्रात्वा ययो नर न रुष्यति ग्लायति वा स विघ्नेयो जितेन्द्रियः. इंद्रिय निग्रह એનો અન્વય જોઈશું. યહ નરઃ શ્રુત્વા પ્રષ્ટવા ચ દ્રષ્ટવા ભુક્ત્વા ધ્રાત્વા ન રુષ્યતિ ગ્લાયતિ વા સ જીતેન્દ્રિય વિઘ્નેયઃ. શબ્દાર્થ જોઈશું. શ્રુત્વા શ્રુત્વા એટલે સાંભળીને, સ્પૃષ્ટવા સ્પષ્ટવા એટલે સ્પર્શીને, ભુક્ત્વા ભુક્ત્વા એટલે દ્રષ્ટવા એટલે જોઈને, ભુક્ત્વા એટલે ખાઈને, ધ્રાત્વા સૂંઘીને, ન રુષ્યતિ હર્ષ પામતો નથી, ન ગ્લાયતિ એટલે ગ્લાની પામતો નથી, જીતેન્દ્રિય એટલે કે વિજય પ્રાપ્ત કરનાર. અનુવાદ જોઈએ કે જે માણસ સાંભળીને, સ્પર્શીને, જોઈને, ભોગવીને અને સૂંઘીને હર્ષ પામતો નથી કે ગ્લાની પામતો નથી તેને ઇન્દ્રિય વિજેતા જાણવો. હવે આપણે જોઈશું ધીહી. 7वां लक्षण है धी मीनिंग बुद्धिमत्ता का प्रयोग, यूज ऑफ इंटेलिजेंस. किसी प्रश्न को कोई मस्तिष्क कितना जल्दी और कितना सही सही सुलझा सकता है यह बात बुद्धि पर निर्भर करती है. परंतु क्या बुद्धि सबको एक जैसी मिलती है? कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है तो कोई नहीं. अगर हमारे पास जैसी भी अक्ल हो उसका प्रयोग हम पर ही निर्भर करता है. उदाहरण के तौर पर एल्बर्ट आइंस्टाइन को ही ले लीजिए. जब वे बालक थे तो उन्हें स्कूल से यह कहकर निकाल दिया था कि वे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, पर प्रश्न पूछने से तो मस्तिष्क का विकास होता है. परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और आज वह सारी दुनिया में अपने आविष्कारों की वजह से मशहूर हैं. बुद्धि के प्रयोग से हम सबका भला करना चाहते हैं, ना कि नुकसान. अगर बुद्धि का प्रयोग सकारात्मक होगा तो लोगों की सोच भी सकारात्मक होगी. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधनं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी. એટલે અહીંયા શબ્દાર્થમાં કહેવામાં આવ્યું છે, એનો અન્વય જોઈશું પહેલાં, પછી એના શબ્દાર્થ જોઈશું. યા બુદ્ધિ પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ કાર્ય અકાર્યે ભયા ભયે બંધન મોક્ષનમ ચ વેત્તિ સા બુદ્ધિ પાર્થ સાત્વિકી. શબ્દાર્થમાં યા બુદ્ધિ એટલે કે જે બુદ્ધિ, પ્રવૃત્તિમ એટલે પ્રવૃત્તિને, નિવૃત્તિમ એટલે નિવૃત્તિને, કાર્ય અકાર્ય એટલે કે કાર્ય અને અકાર્યને, યોગ્ય કાર્ય અને ન કરવા જેવા કાર્યને, એમ કરવા ન કરવા જેવા કાર્યો, ભયાભયે ભય અને અભય, બંધનમ એટલે બંધન, મોક્ષમ મોક્ષને, વ્યક્તિ એટલે જાણે છે, સા બુદ્ધિ એટલે કે તે બુદ્ધિ, પાર્થ એટલે અર્જુન, સાત્વિક એટલે સત્વગુણના સ્વભાવવાળી છે. હવે અનુવાદ જોઈશું. હે પાર્થ, જે બુદ્ધિ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિને, કાર્ય અને અકાર્યને, ભય અને અભયને, બંધન અને મોક્ષને એટલે કે મુક્તિને જાણે છે તે બુદ્ધિ સત્વગુણના સ્વભાવવાળી છે, તે બુદ્ધિ સાત્વિકી છે. હવે 8મું વિદ્યા. 8वां लक्षण है विद्या, हंट फॉर नॉलेज. सिर्फ बुद्धि से ही धर्म की प्राप्ति नहीं होती, विद्या का ज्ञान भी होना चाहिए. सही ज्ञान से ही हम बुद्धि का उपयोग मानव के विकास में लगा सकते हैं.
हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वह अपने ज्ञान का विस्तार कर कर मानव के भले के लिए हमेशा अग्रसर रहते थे। चरक को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर चिकित्सा पद्धति का जो विस्तार किया वह आज की मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी से कितना मेल खाता है। हमें आज के युग में जो जो ज्ञान आवश्यक है उसको पाने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान अर्जित करना जहाँ ज़रूरी है वहीं आपकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। सारा संसार सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो सामाजिक व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। अगर सामाजिक व्यवस्था बिगड़ गई तो धर्म की स्थापना किस प्रकार होगी? क्योंकि हर विषय का ज्ञान समाज सुधार के लिए आवश्यक है। जहाँ भौतिक ज्ञान जीविका को सुलभ बनाने के लिए ज़रूरी है, वही आध्यात्मिक ज्ञान मन व आत्मा के विकास के लिए ज़रूरी है। अब आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब तप करना नहीं, वह तो मन के विचारों की शुद्धता है। आप सबने यह तो सुना ही होगा, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिस युग में मनुस्मृति का निर्माण हुआ उस युग में शायद विद्या का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान होगा, पर वह आज के युग में लागू नहीं होता। आज के युग में स्वर्ग की स्थापना के लिए भौतिक व आध्यात्मिक ज्ञान दोनों ही ज़रूरी है। भौतिक ज्ञान जीविका के लिए और आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा की शुद्धता के लिए। अनेक संशयो छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम् सर्वस्य लोचनं शास्त्रम यस्य नास्येवान्धस। હવે જોઈએ અન્વય। અનેક સંશયો છેદી પરોક્ષાર્થસ્ય દર્શકમ શાસ્ત્રમ સર્વસ્ય લોચનમ યસ્ય ન અસ્તિ સહ અંધ એવ। હવે શબ્દાર્થ જોઈએ। અનેક સંશયો છેદી એટલે અનેક સંશયોને દૂર કરનાર, પરોક્ષાર્થસ્ય એટલે કે પરોક્ષ અર્થ અપ્રસ્તુત વસ્તુ બતાવનાર, દર્શકમ એટલે દર્શન કરાવનાર, લોચનમ એટલે આંખ, એના સમાનાર્થી થાય નયનમ નેત્રમ, અંધ એટલે આંધળો। અનુવાદ જોઈએ। અનેક સંશયોને દૂર કરનાર અને અપ્રસ્તુત અર્થનું દર્શન કરાવનાર શાસ્ત્ર એ સૌનું નેત્ર છે, જેની પાસે તે નથી તે આંધળો છે। હવે આપણે સત્યમ વિશે વાત કરીશું। आखिर में महर्षि मनु कहते हैं, सत्यम क्रोधो दशंक धर्म लक्षणम, अर्थात सत्य महर्षि मनु का बताया नवा लक्षण है। सत्य धर्म में इतना सशक्त है कि शिव को हम सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं। सत्य मीन्स ट्रूथ। कहते हैं जहाँ सत्य का निवास होता है वही परमात्मा का भी वास होता है। सत्य को भी लोग अपने हित के लिए तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। अगर हम अंधे को अंधा या लंगड़े को लंगड़ा कहे तो यह असत्य तो नहीं, मगर हम इस प्रकार के सत्य से किसी का भी दिल दुखा सकते हैं। इसलिए सत्य का विचार जरा आराम से करते हैं। यह शब्द अपने आप में बहुत कुछ छुपाए हुए है। सत्य बोलना अच्छी बात है। यह एक साधारण ज्ञान है जो हम सब बचपन से सीखते आए हैं, पर हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, क्या हम यह साधारण सी लगने वाली शिक्षा अपने जीवन निर्वाह में हर जगह उपयोग में लाते हैं? शायद नहीं। सत्य एक भाव है जो निश्चल है, पवित्र है और अहिंसा का प्रतीक है। किसी की गुप्त बात को यानी उसकी सीक्रेट को उस व्यक्ति को अपमानित करने के लिए उद्देश्य से जग जाहिर करना सत्य आचरण तो नहीं है, अपितु किसी में सुधार की भावना से बिना उसे अपमानित किए उसकी गलती की ओर इंगित करना सत्य आचरण है। सत्य भाषण का अर्थ है वाणी का संयम, भाषा का विवेक। आज बहुत से कलह का कारण भाषा में विवेक का अभाव होना है। खासकर गृह कलेश भाषा में अविवेकता जताता है। एक दूसरे के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग सत्य की गरिमा को ही नष्ट कर देता है। हर मनुष्य का सत्य उसके दृष्टिकोण को दर्शाता है। सत्य समय समय पर अपना स्वरूप बदल ही लेता है। जैसे सतयुग में महर्षियों को भाषण सत्य कहलाता था, परंतु आज आप लोगों को चारों तरफ सत्य बोलने वाले महर्षि न दिखकर ढोंगी बाबा दिखाई देते हैं। उनकी कही हर बात से आप सहमत नहीं होते, अपितु अपनी समझ अनुसार व्यवहार करते हैं। यथार्थ कथनम यच्च सर्वलोक सुखप्रदम
તત્સત્યમ ઇતિ વિજ્ઞેય અસત્યમ તદવિપ્રયઃ. એટલે કહેવાય છે સત્યમમાં કે યત અન્વયમાં યત યથાર્થ કથનમ સર્વલોક સુખપ્રદમ ચ તત સત્યમ ઇતિ વિજ્ઞેયમ અસત્યમ તદ વિપ્રયઃ. એટલે યથાર્થ કાલમ, યથાર્થ બાબતનું વાસ્તવિક કથનનું કહેવું એ તે સર્વલોક સુખપ્રદમ, બધા લોકોને સુખ આપનાર, વિજ્ઞેયમ એટલે જાણવું, તદ વિપર્યય એટલે કહે છે કે તેનાથી વિપરીત, તેનાથી ઉલટું. હવે અનુવાદ જોઈશું. જે વાસ્તવિક કથન છે અને જે સર્વ લોકો માટે સુખ આપનાર છે તે સત્ય છે એમ જાણવું, અસત્ય એનાથી ઉલટું હોય છે. હવે આપણે અક્રોધ વિશે જોઈશું. हम 10वें लक्षण अक्रोध की तरफ बढ़ते हैं। अक्रोध क्रोध का विलोम है। यह तो आप सब जानते ही हैं। क्रोध विवेक को खा जाता है, इसलिए महर्षि मनु ने इसे विशेष स्थान दिया है। क्रोध हमारे अहंकार से संबंधित है। जब कोई हम पर आक्रमण करता है तो हम क्रोध कर अपनी रक्षा करते हैं। यह क्रोध किसी को हानि नहीं पहुंचाता, परंतु जब हम अहंकार वश क्रोध करते हैं तब हम वस्तु, स्थान, धन, प्रियजन इन सब पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए क्रोध करते हैं। यह कभी भयानक साबित हो सकता है। इस तरह के क्रोध से रिश्ते में दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए हमें क्रोध न कर शांत स्वभाव से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। क्रोध का विलोम अक्रोध हमारे जीवन को सरल व सुलभ बना सकता है। वही क्रोध मन में आक्रोश भर देता है। क्रोध में हम भला बुरा सब भूल जाते हैं। अगर हमारे माता पिता हम पर क्रोध या गुस्सा करते हैं, पर वह तो ये सब हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। जीवन को अक्रोध ही सरल व शांत बना सकता है। अगर हम क्रोध ना करें तो मित्रों की संख्या बढ़ जाएगी और शत्रु खुद ब खुद कम हो जाएंगे। परंतु इस जीवन शैली के लिए बड़े तप की आवश्यकता है। जो संत होते हैं कहते हैं उन्होंने क्रोध पर विजय पा ली है। जब तक श्री राम जी को क्रोध नहीं आया था तब तक रावण का भी विनाश नहीं हुआ था। क्रोध जहाँ नुकसानदायक है वहीं यह लाभदायक भी है। क्रोध का सही इस्तेमाल तो मानव की बुद्धि पर ही निर्भर करता है। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि महर्षि मनु ने धर्म का विश्लेषण बहुत ही अच्छा किया है। अपने जीवन में इसे सही तरीके से उतारना हम पर ही निर्भर करता है। છેલ્લો શ્લોક છે તેમાં કહે છે તપતે યતતે ચૈવ યચ્ચ દાનમ પ્રયચ્છતિ ક્રોધમ હિ સર્વમ હરતિ તસ્માત ક્રોધમ વિવર્જયેત. એટલે કે છે અન્વયમાં યત તપતે યતતે ચ એવમ દાનમ ચ પ્રયચ્છતિ ક્રોધ હિ સર્વમ હરતિ તસ્માત ક્રોધમ વિવર્જયેત. તપતે એટલે તપે છે, યતતે એટલે પ્રયત્ન કરે છે, પ્રયચ્છતિ આપે છે, હરતિ હરી લે છે, વિવર્જયેત એટલે ત્યાગ કરવો જોઈએ. અનુવાદ જોઈએ કે જે તપ કરે છે, જે પ્રયત્ન કરે છે અને જે દાન આપે છે, ક્રોધ તેનું બધું હરી લે છે, તેથી ક્રોધનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.